Recording. Okay. So seems like electrical के लोगों की आज छुट्टी है probably because of days they are not available physically, but nice that they are available online at least for the class. So ladies and gentlemen, what we are covering today or what we are starting today is a very important topic, and the name of the topic is network security fundamentals. Definitely all of you or most of you are interested Okay, so what is desired here is how we can implement the network security. So why it is important? Because nowadays mostly मैं आप लोगों को यही बताता रहता हूं कि कुछ साल पहले नेटवर्क सिक्योरिटी वाज नॉट a big concern. Lekin now this network security has become so wide that it has become a specialized field. And people now, many of the universities are offering BSc in network security or in cyber security. So that that shows the importance of network security. Maybe a few decades back, maybe one or two, only the army or military or the agencies were involved or interested in the security of their data or their infrastructure. But today, even the common person like you is interested in the network security. That's the reason, along with this ITN course, after completing definitely this course, we mostly offer to the students the course of cyber security. And then we may offer them the cloud security as well. And inshallah, I am trying कि बहुत जल्द, because definitely all of these courses are at the level of CCNA, which is the associate level, but soon in the security area, we will be offering the CCNP as well, which means Cisco Certified Network Professional, a big thing. So a lot of job opportunities are available globally, not only in Pakistan, but globally in the area of security. Along with the networking, definitely, networking की अपनी jobs हैं. इसी वजह से networking के लोग जो होते हैं, they sit mostly in the network operation center, while the security people sits in a specialized area which is called security operation center, SOC. Now, ladies and gentlemen, जहां भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कि आप पूछ सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो हम जस्ट एक चैप्टर है, एक मॉड्यूल है. जब डिटेल में पढ़ते हैं तो काफी कुछ ज्यादा होता है, लेकिन मोस्टली वी कैन से दैट इट इज खयाम, इट कैन टेक द एरिया ऑफ द ऑफेंसिव सिक्योरिटी. ऑफेंसिव सिक्योरिटी, it may take the area of defensive security. It may take the area of the intrusion or incident response team. Incident, अभी बताता हूं कि इनका क्या मतलब है. Incident response team, you can become part of the incident response team, and you can become the part of the digital forensic team. तो जस्ट टू एक्सप्लेन, टू टेल यू कि एक एरिया, एक कोर्स पढ़ने से या एक एरिया को स्टडी करने से आपके पास कौन कौन से एरियाज सामने आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप ये ऑफेंसिव पार्ट, दो चीजों में मैं इसको डिवाइड करता हूं. अगर आप ये एथिकल कर रहे हो, आप कहेंगे जी किस तरह अटैक करना एथिकल कैसे हो सकता है, तो आई एक्सप्लेन इन अ मिनट. और दूसरा जो है एथिकल की बजाय अनएथिकल हो जाएगा. ठीक है जी, अनएथिकल हो जाएगा. अनएथिकल क्यों आज इलेक्ट्रिक में छुट्टी इस बात में? एवरी वेडनेसडे सिर्फ आज के लिए. ओके, तो एथिकल और अनएथिकल, अगर आप एथिकल कर रहे हैं तो यू बिकम पार्ट, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ द पिंक टीम.
तो यू बिकम पार्ट ऑफ दी पिंक टीम। अब आप मुझसे डेफिनेटली पूछेंगे कि किस तरह को हम ऑफेंस भी करें और वो एथिकल भी हो, कैसे पॉसिबल है? तो आई एक्सप्लेन। इसी तरह अगर आप अनएथिकल कर रहे हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द रेड टीम, यू आर पार्ट ऑफ द रेड टीम। इसी तरह अगर आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, जो कि इवनली इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे, सो इन दिस केस यू कॉल इट दैट यू आर पार्ट ऑफ द ब्लू टीम। तो ये टर्म्स मोस्टली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, एकेडेमिया में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए आपको इन चीजों के साथ थोड़ी सी वाकफियत करवाना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ये देखिए इंसिडेंट रिस्पांस टीम को, ये क्या करती है? यानी तो पिंक टीम हो गई, रेड टीम हो गई, ब्लू टीम हो गई। इंसिडेंट रिस्पांस टीम क्या करती है? वो ये करती है कि अगर कोई अटैक हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अगर किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हो जाता है तो उस वक्त पुलिस को या आर्मी को नहीं लाया जाता, बल्कि उस वक्त आप अपने कमांडोज को सामने लेकर आते हैं। जैसे आर्मी अपने कमांडोज को सामने लेकर आती है, इसी तरह आप समझ लें कि साइबर सिक्योरिटी के कमांडर जो कमांडोज होते हैं, दे एक्ट लाइक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। यानी अटैक तो हो गया है, अगर आर्मी को कहा तो वो तो कहेगी टैंक लाओ अभी गोले मार के। मिसाल के तौर पे जैसे चंद साल पहले एपीएस में हुआ, तो अगर आर्मी को कहा जाता तो कहते लाओ तो अभी तोपे लाए 2-3, अभी हम 2-4 गोले फेंकते हैं, सब मर जाएंगे, सारे दहशतगर्द मार देंगे। लेकिन वहां तो दहशतगर्द 5 थे, 7 थे, व्हाटएवर, वहां तो बाकी स्टूडेंट्स थे, वहां तो बाकी टीचर्स थे। तो इसका मतलब है कि आर्मी का ये काम नहीं था। इसी तरह आपने देखा होगा कि एयरफोर्स को भी नहीं कहा गया। अगर एयरफोर्स को भी कहते अभी हम 2 हेलीकॉप्टर लाते हैं या 2 जेट लेकर आते हैं, अभी 2-4 बम गिराएंगे, सारे ये मर जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो आपने क्या किया? आपने वहां अपने कमांडोज को सामने लेकर आए। इस तरह if somebody wants to become a commando in the area of cyber security, we will call him that he is the part of the incident response team. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया और रह जाता है जिसको कहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक का मतलब यह है कि आपको पता है, 4 नंबर पे है, 3 मैंने दोबारा लिख दिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजिटल फॉरेंसिक का मतलब यह है कि आपको पता है कि जिस तरह आम जिंदगी में क्राइम्स होते हैं, इसी तरह साइबर की जमाने में भी, साइबर के डोमेन में भी क्राइम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई तंग कर रहा है, आपका किसी ने डेटा हैक कर लिया है, आपका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है, कोई आपको गलत ईमेल्स भेजता है, मैसेजेस भेजता है, व्हाटएवर, ऑल आर दी साइबर अटैक्स। मिसाल के तौर पे अब अगर ये साइबर अटैक हुआ है तो इस पे सजा कौन देगा? लाजमी तौर पे कोई जज देगा। अगर आपने जज से फैसला करवाना है तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा एविडेंस लेकर आओ। तो आम पुलिस तो कहती है कि जी देखें जी, हमने ये बंदा पकड़ा है, ये बंदा, इसकी हमारे पास फोटो भी मौजूद है, देखिए उस वक्त वहां पे मौजूद था, इसके हाथ में लेट करे पिस्टल था, इसने इस पिस्टल से गोली भी चलाई है, और जो उसको लगी है गोली वो इसी पिस्टल की गोली है, फॉर एग्जाम्पल। तो इन सारी एविडेंसेस को कलेक्ट करके जज साहब के सामने रख देते हैं कि जी इसको अब सजा दे। अब लेकिन यहां पे तो ना कोई गोली चली है, ना कोई किसी का बैंक अकाउंट हमने लूटा है, ना हमने कोई एटीएम तोड़ा है, तो किस बात की सजा होगी साइबर में? लाजमी तौर पे अगर आपने लेट इट बी, आपने किसी के अकाउंट में मसला कर दिया है, नाउ इट इज ए साइबर क्राइम। मिसाल के तौर पे के किसी के अकाउंट से चंद लाख रुपए हटा दिए गए, तो लाजमी तौर पे वो तो इस पे वो आएगा। अब ये क्राइम आम पुलिस का नहीं है, ये साइबर क्राइम है कि चेक करना पड़ेगा कि वाकई इट हैपेंड और नॉट, और इफ इट हैपेंड हाउ इट हैपेंड एंड हु डिड इट। फॉर दिस डेफिनेटली वी नीड टू कलेक्ट which means the experts have to collect some evidences. They have to preserve the evidences then. First of all, they have to preserve the evidences. Even whatever is in the RAM, you have to protect it. Whatever is even in the registers, you may have to protect them, because it might be used in the court of law. That is the job of the ladies and gentlemen
the digital forensic experts. Is there any question? No, sir. Okay, somebody asking a question. G Abdullah. डिपेंड करता है, सिर्फ हमने अटैक की बात एक एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं। अब मिसाल जैसे मैंने अभी आपको कहा, लेट करें इसका एक एग्जांपल, मुझे 2 दफा हो चुका है, लेकिन क्योंकि मुझे इन चीजों का इल्म है, मुझे चंद महीने पहले भी एक कॉल आई थी कि जी गलती से मेरी वालदा ने आपके अकाउंट में 5,000 रुपए जमा कर दिए हैं और बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो आप इस नंबर के ऊपर वापस कर दें। और वो तकरीबन 95% एग्जैक्टली जब आप किसी को इजी पैसा के जरिए पैसे शिफ्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। तो वो तकरीबन 95% एग्जैक्टली उस तरह का मैसेज क्रिएट करते हैं और वो मैसेज आपको SMS करते हैं। तो वो आपको क्या कहता है कि जी आप अपना SMS चेक कर लो, आपको मैसेज भी आया हुआ है, तो आपके पास ये पैसे पहुंचे होंगे। और आप देखिए वाकई आपको मैसेज आया होता है, SMS आया होता है, तो आप तो देख के कहेंगे हाँ वाकई मेरे आए हुए हैं, और आप शायद कहेंगे जी मैं वापस कर देता हूं। लेकिन अगर आप वाकई इजी पैसा के अकाउंट में जाएं तो 1 टका भी नहीं आया होता। लेकिन वो आपको टाइम नहीं देता, वो आपको इधर मैसेज करता है, कॉल करता है कि जी आपको पैसे आए हैं, आप अपना SMS चेक करें। और आप लाजमी तौर पे कहेंगे अच्छा मैं अपना SMS चेक करता हूं, और गिव यू हार्डली अ मिनट जिसमें आप SMS वाकई चेक कर सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। और फिर वो आपको कॉल करता है जी आप चेक कर लें, आपको मैसेज आया हुआ है। तो आप कहते हैं हाँ मैसेज तो आया हुआ है। कहता है फिर चले ना मुझे पैसे वो करें। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट मैसेज विच इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, 100% सेम नहीं है, उसमें फर्क है, आई कैन शो यू दिस एज वेल। लेकिन द क्वेश्चन इज आप जब अपने एक्चुअल अकाउंट को ओपन करते हो इजी पैसा पे तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आप अब दिस व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कंडक्टिंग ए साइबर क्राइम। अब लाजमी तौर पे कोई ना कोई अगर मैं ये रिपोर्ट करता हूं तो अगर ये किसी एक एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरी एग्जांपल भी इस पे देता हूं, चले पहले एग्जांपल देता हूं, दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक पहले मेरे साथ लैब 1 में मेरे अटेंडेंट थे, उसको किसी ने बार बार कॉलिंग की और कई इंफॉर्मेशन उससे निकाली। वो इंफॉर्मेशन इतनी काफी थी कि वो उसके अकाउंट से, मतलब गरीब बंदा था, उसके अकाउंट से उन्होंने सारा जितना भी अमाउंट था, शुक्र है कि कम था, वो उन्होंने शॉपिंग में इस्तेमाल कर लिया और उसका अकाउंट खाली हो गया। जब अकाउंट खाली हुआ तो फिर वो बैंक की तरफ भागा कि जी मेरा तो अकाउंट में अब कुछ भी नहीं है, मेरी तो पे थी व्हाटएवर वो सब जा चुकी है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी तुमने अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दी है। लाजमी तौर पे आदमी पहले तो कहता है नहीं मैंने ऐसी कोई काम नहीं किया हुआ, वो कहते हैं नहीं हुआ तो है, क्योंकि हुआ तो बिल्कुल राइट तरीके से हुआ है, ऐसे लगता है कि तुम नहीं किया हुआ है क्योंकि आपने अपनी इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपना ATM दे दूं और अपना पिन कोड भी दे दूं तो इसका मतलब मैं खुद आप गलत काम करवा रहा हूं, तो मतलब उसका आप कोई हल नहीं। लेकिन अगर उस पर एक पावरफुल बंदा होता तो वो एक क्राइम का एक प्रोसीजर तो चला है ना। अब लाजमी तौर पे इसके लिए एविडेंसेस चाहिए कि कलेक्ट की जाए, तब वो एविडेंसेस जो है वो पेश होंगी और पता चलेगा कि ये काम किसने किया है। Now, here comes the digital forensic experts, जो कि ये तो एक एग्जांपल दी। दूसरी अच्छी एग्जांपल इसके, आजकल आपने देखा होगा पुलिस जिसको भी उठाती है, बंदे को बाद में उठाती है, उसके मोबाइल को पहले उसके हाथ में से ले लेती है। क्यों? उनको मोबाइल कोई अच्छी लग रही है कि भाई बड़ी महंगी है, हम अपने पास रख लेंगे। बाजों को तो एक दिन लेकर जाते हैं, दूसरे दिन आकर आपको हवाले भी कर देते हैं, अपनी मोबाइल ले लो हमें बस, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस फ्रॉम के जी आप क्या करते रहे, आपने किसको मैसेजेस किए, किसके साथ आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो हियर कम्स दी डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। सबसे पहले वो आपके लैपटॉप्स उठाते हैं, आपके मोबाइल को उठाते हैं। व्हाट दे आर डूइंग हियर, they are giving this to the digital forensic experts. So all the 4 areas are quite hard. Only what is dependent is on your interest. आप कहां पे इंटरेस्टेड है, पिंक में, रेड में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में, डिजिटल फॉरेंसिक में। लाजमी तौर पे सब पे एक ही बंदा नहीं हो सकता,
लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट इट कैन बी। तो डज इट मेक सेंस टू यू कि जी नेटवर्क सिक्योरिटी कहां पे लाई करती है, और क्या डज इट सीम्स टू यू इट इज इंटरेस्टिंग एरिया टू लर्न? Yes, sir. या इट इज बोरिंग? Yes, sir. ओके, तो अब हम आते हैं, तो ये तो मैंने आपको काफी उस पर बताने की कोशिश की। इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ना चाहते हैं जो कि इस कैरिकुलम का हिस्सा है, वो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, सिक्योरिटी थ्रेट किसे कहते हैं, वुल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं। लाजमी तौर पे जब हम साइबर के डोमेन में काम करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा, यहाँ पे मेरे सामने क्योंकि इस वक्त तीनों इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं, हमने हमारी किसी के साथ अगर 2 एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल, जब हमें किसी के साथ बात में हम एग्री नहीं करते तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर नॉर्मली क्या कहते हैं, कहते हैं जी मेरा उसके साथ 180 का फर्क है, 180 डिग्री हम आउट ऑफ फेज है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब कि वी आर ऑपोजिट, वी आर थिंकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इसी तरह जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनसे अगर कोई पूछ ले कि भाई क्यों लड़ पड़े थे, कहता है मेरा मीटर शॉर्ट हो गया था, क्योंकि वो हर को मीटर को देखता रहता है ना कि स्पीड कम है ज्यादा है, तो ही टॉक्स इन हिज ओन वे। इसी तरह जब आप साइबर की दुनिया में बात करेंगे तो आप यू हैव टू नो व्हाट इज द सिक्योरिटी थ्रेट्स, व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक्स आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ, ओके एक चीज रह गई वो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने यहाँ पे, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे आपसे बड़ी खुशी है क्योंकि आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। अभी मैंने ये बात की थी कि किस तरह, ये तो अच्छा कि मुझे याद आ गया, किस तरह पॉसिबल है कि ऑफेंस भी करो और वो एथिकल भी हो, और ऑफेंस अनएथिकल हो, ये तो बात समझ में आती है कुछ हद तक, लेकिन एथिकल की समझ में नहीं आती। तो समझ में तो आनी चाहिए, स्पेशली इसके ऊपर, एथिकल के ऊपर पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफर होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी जबरदस्त एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कभी सुना है मारोस? नो सुना है? व्हाट इज दिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग? कोई एक्स्ट्रा चीज ना आ रही है? ओके, बात करते हैं जी। इज देयर एनीवन ऑनलाइन हु कैन just guide me, what is the penetration testing? सर वो आप किसी भी सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी के किसी भी सिक्योरिटी के चेक करने के लिए कि वो एक किसी भी नेटवर्क को हम चेक करेंगे वो इतना सिक्योर है कि नहीं, तो बेसिकली आप एक पेन टेस्टर हायर करते हैं जो कि चेक कर उस पर बेसिकली उसको हैक करता है, बट आपके उससे एंड देन ही ट्राइज के चेक करे कि कहीं कोई लूप्स तो नहीं रह गए, तो वो उनको चेक करता है एंड देन उस नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक हो जाती है। ओके, तो अलीशा ने काफी लंबी हमें एक्सप्लेनेशन दी और राइटली दी कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी ये यूईटी का नेटवर्क है, या चले हम कहते हैं कि ये आईएसआई का नेटवर्क है, अब लाजमी तौर पे इस दोनों नेटवर्क में इंटरनली भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसको पर अटैक करें। इंटरनली मतलब मे बी योर स्टूडेंट्स, मे बी योर एम्प्लॉइज। आप कहेंगे एम्प्लॉय क्यों करेगा भाई, उसको एक हफ्ते से तनख्वाह नहीं मिली फॉर एग्जांपल, या उसको बॉस ने थोड़ा गुस्सा कर दिया है, वो एनॉइड हो गया है, कहता है गोरम पता सर उस तकार खराब हो, तो ही इज एन एनॉइड वर्कर एम्प्लॉय, ही कैन आल्सो अटैक। एंड somebody outside, maybe in China, maybe in US, maybe in Germany, he may also attack this network. It may be internal or it may be external. Similarly the case in this network as well. लेकिन अगर वो अटैक करने में कामयाब हो जाता है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ लूप होल्स इस नेटवर्क में मौजूद हैं। जैसे अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है, इसका मतलब है कि उस घर में कोई दीवारें छोटी थी, या दरवाजे कमजोर थे, या उन्होंने कोई सीढ़ी लगा के पहले से रखी हुई थी, छोड़ी हुई थी, तो कुछ लूप होल मौजूद था जिसके जरिए चोर अंदर आया, अदरवाइज इट वाज नेवर पॉसिबल। ऐसे ही है ना? तो जेंटलमैन, जो इसी तरह यहां पर भी यही बात है कि अगर कोई इसमें नेटवर्क में आता है तो डेफिनेटली इट मींस कि यहाँ पे कोई लूप होल्स मौजूद हैं, और इन लूप होल्स को कहते हैं
इस लूप होल्स को कहते हैं वल्नरेबिलिटीज। जी, इस लूप होल्स को कहते हैं वल्नरेबिलिटीज अलीशा। अब ये वो लूप होल तो मौजूद है, लाजमी तौर पे इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट को हायर करना होगा, उसको आप इजाजत देंगे कि जनाब आप चेक करें कि मेरे नेटवर्क में कौन सी खामियां मौजूद हैं, लूप होल्स मौजूद हैं। अब ही बीइंग ए एक्सपर्ट, वो आएगा और यहां से मालूम करके देगा। इन अदर वर्ड, वो अटैक करेगा। वो क्या करेगा? अटैक करेगा इस नेटवर्क पे। लेकिन एथिकल है, उसको इजाजत दी गई है कि चेक करो कि दरवाजा कमजोर तो नहीं है। तो लेट करेंगे वो उस पर कोई हैवी चीज मारेगा और चेक करेगा कि जी ये नहीं टूटता, या वो उसकी अगर मारता नहीं है तो उसका गेज चेक करेगा कि गेज इसमें इस दरवाजे का इतना मजबूत है कि कोई भी अगर उसको धक्का दे तो ये गिर नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो वो तमाम चीजों को देख, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो इस नेटवर्क पे तमाम वो चीजें इस्तेमाल करेगा जो कि उसको आती हैं। अब यहाँ पे आपका एग्जाम है, यहाँ पे आपकी टेस्ट है कि आपको कितने तरीके आते हैं जिसके जरिए आप, मे बी वो आपको अपने वेब का दे कि मेरे वेब को चेक करो, हो सकता है वो आपको अपना ईमेल दे कि मेरे ईमेल को चेक करो, हो सकता है कि वो कहे कि मेरे फायरवॉल को चेक करो, हो सकता है कि वो कहे मेरे राउटर्स को चेक करो, हो सकता है वो कहे मेरे पूरे नेटवर्क को चेक करो, डिपेंड्स। एंड देन यू विल टेल हिम कि जी आफ्टर डूइंग दीज अटैक्स you will compile a report, a complete report and tell him कि जी आपके नेटवर्क में ये खामियां हैं और इनके ये से अगर मैं सोल्यूशन मांगते हो तो ये सोल्यूशन है। नहीं मांगता मत दो, क्योंकि पैसे उसने नहीं दिए, हम क्यों बताएं उसको कि इसके हल क्या है। हाँ, अगर वो कहता है कि जी मुझे इसके हल भी दो, और हल ना सिर्फ दो बल्कि उनको इंप्लीमेंट भी करो, तो डू इट एंड गेट योर मनी, because you are a contractor to them, you are an expert to them, they have hired you for this purpose. So this is the job of the pen tester, this is the job of the penetration tester. अब लाजमी तौर पे आप लोग कहेंगे कि जनाब अगर एक दफा हमने ये काम करवा लिया तो इसका मतलब है कि अब तो हमें जिंदगी भर पेन टेस्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा ही ना जरूरत है सर। है। अलीशा कहती है फिर भी जरूरत है। क्यों जरूरत है अलीशा? इस वजह से कि हो सकता है कि आपने कोई नई अपडेट कर दी हो, एंड एवरी डे यू डू, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हो, तो या उस पुराने ही इसका आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उस टूल में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी सामने आ गई है जो पहले मालूम नहीं थी, अब मालूम हो गई है, तो अगेन यू हैव टू डू दिस टास्क रिपीटेडली। तो इस वजह से मे बी के यू मे हैव ए for always you have a pen tester in your team, which means the ping team, or you may hire someone after some time, maybe every month, maybe after every 2 weeks, आप मेरे इस नेटवर्क को चेक करके मुझे बताते जाएं और उसको फिक्स करते जाएं और उसकी फी जो है वो लेते जाएं। इसका मतलब है कि ये काम ऐसा नहीं है कि बस एक दफा हो गया तो बस अब छुट्टी है, आराम हो गया है उनके लिए भी और आप भी फारग हो गए। नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। अब मेरी बात समझ आ गई? तो ये तो हो गया एथिकल का। लेकिन अगर यही काम आप बगैर पूछे किसी के लिए करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, यहां पे आपका माइंड सेट डिफरेंट है। सिर्फ यहां पे आपने काम वही किया, लेकिन आपका माइंड सेट ठीक था कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई और ना कर ले, नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन यहां पे आपका मकसद है कि नहीं, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि जी मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया और मेरे इतने यूजर्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब मुझसे चले गए हैं, तो दैट इज दी अनएथिकल, क्योंकि उसने आपसे पूछ के नहीं किया। तो दिस कम्स अंडर दी अनएथिकल, व्हिच मींस ए रेड टीम गाय डिड दिस। कुछ बात समझ आ रही क्या नहीं समझ आ रही? जी खयाम, रिजा, आर यू हियर? सबीन, सारा, ये अच्छी बात है। ज्यादातर जो है फीमेल जो है वो क्लास में आ रही है और मेल नहीं। आई डोंट नो व्हाई। एनीहाउ, वो कहते हैं हमें पहले से आता है। ठीक है,
ट्रेंड चेंज हो गया है, चलें जी। तो जकी कहते हैं ट्रेंड चेंज हो गया, इस वजह से लड़कियां ने पढ़ना छोड़ दिया है। जबकि मैंने आज सुबह भी आपके साथ एक चीज शेयर की कि उस पे एक स्टूडेंट जुनेद ने पॉइंट आउट किया, ठीक है हम हर एक की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन डेफिनेट डिस्कशन का फोरम मौजूद रहता है। और मैंने कहा क्या था कि रीडर्स जो होते हैं वही लीडर्स होते हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो यूरोप, अमेरिका वो अपनी एजुकेशन पे बिलियंस कभी भी खर्च ना करते, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर कभी भी खर्च ना करते, क्योंकि उनको पता है। बदकिस्मती की बात ये है, अगर आप कभी यूरोप का आपको जाने का मिले तो आपको पता लगता है ये स्ट्रीट जो है फलाने डॉक्टर के नाम पे है, ये वाली स्ट्रीट फलाने डॉक्टर के नाम पे है। तो आप हैरान होते हैं कि हमारे वहां पे तो मैं नहीं कहूंगा किन किन के नाम के ऊपर हमने अपनी रोड्स के नाम रखे होते हैं, चौराहों के नाम रखे होते हैं। नहीं, आपके लीडर जो हैं वो हैं जो कि आपको थिंकर बनाते हैं, जो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं, और वो दिखा सकता है जो कि एक वाकई एक रीडर होता है। और वो उसका आपको पता भी चल गया कि वो तरक्की कर गए और हम कहाँ पे पहुंचे हुए। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे आसान जुनेद इसकी एग्जांपल मैंने उसको लिख भी दिया, जब हमारे पैगंबर ने हमें, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा जो इल्म है वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी उसमें कोई गलती नहीं, खामी नहीं है, तो हमारे पैगंबर ने तो हमें ये कहा कि जनाब आपको अगर उसको चीन क्यों कहा कि इट वॉज फार अवे, क्योंकि उसको कोई जहाज नहीं था, उसको कोई गाड़ी नहीं थी जिसमें बैठ के चला जाया जाए। इतनी तकलीफ करके भी आपको चाइना जाना पड़े और इल्म हासिल करना पड़े, यानी रीडर बनना पड़े, तो बन जाओ। और ये भी आपको पता है कि उस वक्त चाइना में कोई सहाबा कराम नहीं बैठे हुए थे, कोई वली अल्लाह नहीं बैठे हुए थे जिनके पास वो कह रहे थे कि जाओगे तो उनसे पढ़ोगे तो फायदा होगा। इसका मतलब है कि हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म का इल्म मुसलमान के लिए एज ए बैसियत है जरूरी। इवन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब जंग में इनिशियल दौर में गजबात में जब कोई काफरों को पकड़ लिया जाता था तो उनके जिम्मे ड्रॉप लगा दी जाती थी कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। अब वो क्या पढ़ाते थे? लाजमी तौर पे कुरान तो उनको नहीं आता था, अगर कुरान आता होता तो फिर वो काफिर कैसे होते? तो लाजमी तौर पे इसका मतलब कि इल्म के ऊपर कोई वो नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड लर्न अबाउट दी नॉलेज। ओके, तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि जी हमारा अब हमें समझ आ गई कि ये लैंडस्केप इस कोर्स का या इस टॉपिक का नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या है। अगर कोई क्वेश्चन है विजन कंपनी तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने टॉपिक्स की तरफ जाता हूं, जो कि इस छोटे से चैप्टर में मकसद पहले यह था कि आपको पूरे कैनवस के ऊपर आपको लेकर जाया जाए, और फिर कम से कम आप कल ये तो नहीं कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। जैसे आज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए फॉर MS रिसर्च और फोर्थ सेमेस्टर हो गया, यानी आखिरी सेमेस्टर में पहुंच गए, अभी तक पता ही नहीं है कि करना क्या है। दैट इज समथिंग बैड, दैट इज समथिंग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। इसके मुकाबले में चाहिए तो ये था कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में दे शुड हैव डिसाइडेड, तो क्योंकि उनको पूरा कैनवस कभी दिखाई नहीं जाता, और वो भी फोर्थ सेमेस्टर में आके उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमें इसमें हेल्प की जाए, कहते हमें कुछ भी नहीं पता, आप बताओ कि हम क्या करें। तो दैट इज समथिंग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो पहली बात हम करना जो चाहते हैं दैट इज दी सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है, और अभी हम देखेंगे कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनल भी हो सकती हैं, अभी जैसे मैंने कहा, और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे डिवाइसेस में, हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। अभी मैंने बताया वल्नरेबिलिटी का मतलब है लूप होल्स, कौन कौन सी लूप होल्स हो सकती हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको इसकी एक दूं तो आपने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर हमारे FBR के ऊपर अटैक हुआ था, FBR पर अटैक हुआ था और उनके सर्वर को हैक कर लिया गया था।
उनके डेटा को नुकसान पहुंचाया गया था। अब यहाँ ये बात समझ में आती है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FBI पूरे मुल्क का टैक्स कलेक्शन का एक जगह है। इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। तो अब लाजमी तौर पे इनके जो सर्वर था वो उसमें कोई ना कोई लूप होल मौजूद थी, जिसको कहीं से भी बैठ के किसी शख्स ने एक्सप्लॉइट किया। क्लियर? उन्हीं दौरान हमारे नेशनल बैंक को भी किया गया था। और आजकल के जमाने में तो आपको पता है हर रोज कभी वीडियो लीक्स, ऑल दिस आर दी सिक्योरिटी थ्रेट्स। लाजमी तौर पे देयर आर सम वल्नरेबिलिटीज ड्यू टू व्हिच इट कैन हैपन। ओके, फिर हम देखेंगे कि जस्ट वेरी ब्रीफली कि किस किस्म के नेटवर्क अटैक्स पॉसिबल है। लाजमी तौर पे जब अटैक की बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द वल्नरेबिलिटीज। These vulnerability will be exploited to accomplish the network attacks. जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मसला ये था कि जो सर्वर चल रहा था वो लाइसेंस नहीं था। वो लाइसेंस ना होने की वजह से वो कभी भी अपडेट नहीं होता। तो करने वाले ने ये किया कि यहां से बैठ के रिकॉग्निशंस की, मालूम किया कि जनाब यहां पे कौन कौन से सर्वर्स हैं, कौन कौन से आईपीज एक्टिव हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कोर्ट में हम कोई भी नेटवर्क ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यूईटी का या कोई भी, और हम मालूम करके बताते हैं कि जी यहाँ पे इस वक्त 10 या 20 कंप्यूटर्स एक्टिव हैं और उनके आईपीज ये हैं। फिर हम हर एक कंप्यूटर पे जाके चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा उनका वर्जन है। सारी मालूमात हम इससे निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज होता है, कि लाजमी तौर पे अगर किसी मशीन के ऊपर लेट इट बी 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो कम से कम लाइसेंस नहीं है। लाजमी तौर पर उन्होंने एक दफा कहीं गुलाजी से सीडी लेके इंस्टॉल किया हुआ है एंड देन दे आर यूजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्जन मुझे पता चल गया, मैं इसके बारे में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं वो सर्च कर लूंगा कि जी इसमें लेट करें 10 वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं एंड देन आई कैन यूज वन बाय वन। जहां मैं कामयाब हो गया, आई एम द विनर। मेक सेंस? अब इसके बाद ये काम तो हो गया हमारी रेड टीम का या हमारी पिंक टीम का, रेड टीम का या पिंक टीम का। लेकिन इसके मुकाबले में लाजमी तौर पर डिफेंडर भी होता है जो डिफेंस करेगा। तो वो यहां पे आएगा नेटवर्क अटैक मिटिगेशन। किस तरह ये जो अटैक तो ये करेगा, ये तो इसकी आदत है, किस तरह मैं इन अटैक्स को रोक लूं, यानी डिफेंस करूं। तो यहां पे आपकी जो डिफेंस का पार्ट है वो आ जाता है, जो कि ब्लू टीम के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात करेंगे जो कि नेटवर्क्स में हम इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पे फायरवॉल्स हैं, मिसाल के तौर पे वीपीएन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अल्दो के हम वीपीएन को मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज करते हैं और जिस लिए ये बनाया गया वो डेफिनेटली कुछ और है। हमारा मकसद तो आपको पता है कि जैसे अभी चंद दिन पहले, डेफिनेटली सिर्फ ये नहीं कि आप लोग करते हैं, सब हम करते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले चंद दिन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन किया और मैं इस वीपीएन के जरिए कनेक्ट हो जाता था और फिर मैं यूट्यूब इस्तेमाल करता था। मैं तो इसका मतलब वो मुझे ब्लॉक नहीं कर सके। दिस इज अगेन, ये तो एक उसका कहने के छोटा सा फायदा है। असल फायदा क्यों वीपीएन बनाया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, विच इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसी तरह आपके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, आपके एंटीवायरसेस होते हैं, आपके एंटी मैलवेयर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने, सारी तो नहीं लेकिन जस्ट ब्रीफली हमने इस कोर्स में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि किस किस्म के सिक्योरिटी डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक आवर नेटवर्क सिक्योर, ड्यू टू विच वी विल से that we have mitigated the network attacks
अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा कि वी हैव मिनिमाइज द नेटवर्क अटैक्स, मैंने नहीं कहा कि वी हैव स्टॉप द नेटवर्क अटैक्स। अगर स्टॉप हो गए फिर तो मुझे घर चला जाना चाहिए, क्योंकि बस खत्म हो गए, अब मेरा क्या काम रह गया। तो नहीं, अब चांसेस एवरी डे न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज, मैथड्स, टास्क सामने आते हैं, और इसलिए ये एरिया लुक्रेटिव तो है। लुक्रेटिव इसलिए है कि सैलरी जो है हाई एंड पे है, लेकिन जहां पे हाई एंड की सैलरी होती है वहां पे कुछ हाई एंड के काम भी करने पड़ते हैं। तो फॉर दिस, ये नहीं कि आपने एक दफा एक चीज सीख ली बस दैट्स इनफ, नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेट रेगुलर। तो जितने भी नए अटैक्स आ रहे हैं आपने उनके बारे में, अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो फिर आपने इनको पढ़ना होगा, सीखना होगा और अपने आप को अपडेट रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपके ऑर्गेनाइजेशन पे नेटवर्क अटैक्स मिटिगेट हो, कम हो जाए। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, so that was just a brief introduction. Now we come to the security threats and then to the vulnerabilities. That is the first topic of this module. So we move to the slide. Sorry. जी, तो हमने कहा कि जी सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि अटैक क्या है। तो हमें पता है कि अटैक ऑन ए नेटवर्क कैन बी डेवेस्टेटिंग। लाजमी तौर पे ऑलवेज व्हेनेवर समबडी अटैक योर नेटवर्क, इट इज ऑलवेज डेवेस्टेटिंग। क्या क्या क्यों डेवेस्टेटिंग? बिकॉज दैट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टाइम एंड मनी। आपका नेटवर्क किसी ने डाउन कर दिया, मसले में डाल दिया, लाजमी तौर पे यू हैव टू पुट मे बी hours or days or weeks to regain your status। और इससे जो चीज सबसे बड़ा मसला होता है, शायद टाइम और मनी इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मोस्टली आपकी कस्टमर की जो फेथ है आपके ऊपर वो खत्म हो जाती है। कई कंपनीज इस वजह से बैंकरप्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो भी उनपे, मिसाल तो पे एक बैंक है और उसमें लाजमी तो आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इंफॉर्मेशन क्या है कि उनको ही इस तरह पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये पैसे जा रहे हैं, कब से ये काम हो रहा है, एवरीथिंग दे नो। अगर ये चीज पब्लिक हो जाती है, किसी भी जगह पे आपको नजर आ जाती है, तो क्या आप उस बैंक के पास अपने पैसे रखना पसंद करेंगे? और अगर आप वो पैसे वहां से निकाल दें तो क्या वो बैंक एक दिन भी सर्वाइव कर सकता है? नेवर। तो दैट इज द कस्टमर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, दैट द कस्टमर फेथ। तो यहां पे ये हम कह रहे हैं कि इट इज द लॉस ऑफ टाइम एंड मनी ड्यू टू डैमेज और थेफ्ट ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एसेट्स। दैट इज अनदर गुड पॉइंट कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस हो गया। अब कहेंगे क्या क्या फर्क पड़ गया? अभी देखिए, अभी हमने ये बात की है कि अगर कोई हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन उठा ले जाता है तो दिस इज द इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इससे ओके, सो वी कंटिन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को या एसेट्स को नुकसान पहुंचाता है, हम उसको हैकर भी कह सकते हैं, हम उसको इंट्रूडर भी कह सकते हैं, हम उसको इंट्रूडर भी कह सकते हैं। तो intruder can gain access to the network through software vulnerabilities, hardware attacks, or through guessing someone username and password। इवन हम अपने स्टूडेंट्स को उस कोर्स में ये काम भी करवाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो इवन मिसाल के तौर पे लाइनक्स के पासवर्ड्स हैं। अल्दो आपको पता है कि लाइनक्स यूनिक्स एक बहुत ही स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन हम इसके जितने भी इस मशीन के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, वी कैन क्रैक देम। इसी तरह हम ये भी
अब देखिए ना, अच्छे पर्पस के लिए भी हो सकता है, बुरे पर्पस वो तो बाद में बात करेंगे। इसी तरह हम अपने स्टूडेंट को ये बताते हैं कि अगर किसी फाइल के ऊपर, लेट करें डॉक फाइल है, पीडीएफ है, विनजिप है, विनरार है, आप उनके ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं ना, हम उस पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, बता देते हैं, खोल देते हैं फाइल वापस के, जी ये ले लो। इवन अगर ये राउटर स्विचेस हैं, इस पे भी आपने पढ़ा हुआ है कि हम पासवर्ड लगाते हैं, ऐसे ही है ना, हम उन पासवर्ड को भी क्रैक करते हैं। अब दैट डिपेंड्स के अच्छे पर्पस या बुरा पर्पस, दैट इज अनदर क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, उसमें उसने पासवर्ड लगाया है, लेट करें वो बंदा जॉब छोड़ के चला गया या उसको भूल गया, वो कहता है मुझे अब याद नहीं है, तो क्या उसको हम कोई सजा देंगे? नहीं, हम उसका पासवर्ड क्रैक करेंगे और उसे कहेंगे ले अपना डॉक्यूमेंट वापस और उस पर काम करो। तो दैट इज नॉट बैड। तो अच्छा बुरा, मैं बार बार ये कहता होता हूँ कि जैसे छुरी है, वो अच्छी भी है और वो बुरी भी है। अगर आप उससे किचन में फ्रूट काटें या मीट काटें तो दैट इज ए गुड आइटम, लेकिन वही उठा के आप अपनी स्ट्रीट में जाके लोगों को मारना शुरू कर दें तो दैट इज दी बैड। इसका मतलब क्या है? क्या छुरी बुरी है? तो छुरी इज नॉट बैड, इंपॉर्टेंट इज हाउ यू यूज इट। तो हम जैसे मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल, इस तरह हम जब यूजर नेम पासवर्ड किसी का फाइंड कर लेते हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ टेक्निक से, फिर हम उस डिवाइस में एसएसएच करके इंटर होने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं एक्सेस। तो पहले हम रिकॉनेसेंस करते हैं, फिर हम एक्सेस लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करें, यानी कि मैं तो एक आम यूजर से इस नेटवर्क में आया हूं, लेकिन मैं आपको क्या बनना चाहता हूं? उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूं, उसका रूट बनना चाहता हूं, उसका सुपर यूजर बनना चाहता हूं, तब मैं जाके खतरनाक काम कर सकूंगा। मैं वहां से डेटा को ट्रांसफर करवाना चाहता हूं, तो मैं वहां पे डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट करना चाहता हूं। मैं वहां पे क्या क्रिएट करना चाहता हूं शैला? डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस? डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं, नेटवर्क को अगले का जो सर्विस है, उस सर्विस को इतना बिजी कर दो कि वो जवाब ना दे सके। जिसमें मैं आमतौर पे एग्जांपल देता हूं कि अगर मिसाल मेरा जॉब क्या है? टीच करना, लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि जी आप गेट पे जाके खड़े हो जाओ और जितने भी स्टूडेंट इन हो और आउट हो उनको काउंट करो, तो लाजमी तौर पे बीइंग ए प्रॉब्ली कि मैं जाके गेट पे खड़ा हो जाऊंगा और ये गिनता जाऊंगा कि जी एक बंदा आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, चार निकल गए एंड सो ऑन। लेकिन अगर मुझे क्लास में कोई ढूंढने की कोशिश करेगा तो मैं कभी भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो गेट पे इन लोगों को काउंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिनाइल कर रहा हूं अपनी सर्विस से। इसकी एक और एग्जांपल आपको पता है कि मिसाल के तौर पे बोर्ड है हमारा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बाइसेप जिसे आप कहते हैं। बाइसेप का अगर काम देखा जाए तो मेन काम उसका यही है कि वो रिजल्ट्स हासिल करे और उनको डिस्प्ले कर दे एक खास दिन के ऊपर। ऐसा ही है ना, अगर आपका दिल चाहे कि जी आज रिजल्ट तो आप लगा रहे हो लेकिन स्टूडेंट नहीं देख सकेंगे, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो व्हाट यू विल बी डूइंग? यू विल मेक दिस मशीन बिजी। हाउ? दैट इज नॉट आई एम एक्सप्लेनिंग येट, लेकिन यू विल मेक दिस मशीन बिजी, सो बिजी कि कोई भी इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे मेरा रोल नंबर लो और मार्क्स दो, उसको आएगा एरर 505, एरर 403, 503। इसका मतलब है कि वो मशीन हाईली बिजी है, जबकि कोई भी काम नहीं कर रही, जिस काम के लिए वो बनी है वो कर ही नहीं रही। बात समझ आ गई? तो दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। ओके, सो intruders who gain access by modifying software or exploiting software vulnerabilities are called the threat actors। से क्या कहते हैं? थ्रेट एक्टर। तो जो ये काम करता है आप उसको हैकर भी कह सकते हैं, इंट्रूडर भी कह सकते हैं और थ्रेट एक्टर भी कह सकते हैं। सो क्या कह जी, आफ्टर द थ्रेट एक्टर गेन्स एक्सेस टू द नेटवर्क, 4 टाइप ऑफ थ्रेट में अराइज। क्या क्या वो कर सकता है?
एक्सेस उसने हासिल कर ली, आपके घर में दाखिल हो गया है, एक्सेस उसने गेन कर ली है। ओके, थैंक यू। सबसे पहला, वो इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं, सारी उसने उठा के अपने पास ले गया, कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सिंपल आंसर इज, आपकी, हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि यूनिवर्सिटी को मोस्टली फंड ये करती है या तो गवर्नमेंट या स्टूडेंट्स खुद करती हैं। दुनिया की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो किसी से पैसा नहीं लेती। आप कहेंगे कि भाई वो कहां से लाते हैं? The answer is they do their research. The faculty, the professors are busy in their research, like Stanford, MIT, Oxford, blah blah, and they provide solutions to the industry. They come up with the newer technologies, and these technologies are given to the industry, and to this they get the lucrative amount. अब जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने इस वर्क को पहले सेव करते हो, and you present them as the patents. You may have heard the name. और अगर कोई पेटेंट आपका इस्तेमाल करना चाहे, मिसाल के तौर पर सिस्को इस्तेमाल करना चाहे, या हवावे इस्तेमाल करना चाहे, या लेट इट बी सीमेंस करना चाहे, दे विल पे यू द रॉयल्टी। तो जब तक वो इस्तेमाल करता रहेगा, आपको उसका एक शेयर आता रहेगा। तो गवर्नमेंट तो आपको कह देती है कि जी बजट में पैसे नहीं है, लेकिन रॉयल्टी आपको नहीं कह सकती कि बजट में पैसे, क्योंकि वो सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे, आपको जरूर उसका हिस्सा आएगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैच्योर होने से पहले ही कोई थेफ्ट कर जाए तो ये यूनिवर्सिटियां तो सड़क पे आ जाएंगी। ऐसा ही है ना? तो यहां पे कहने इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करना इस खतरनाक। इसी तरह ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर कल कोई शख्स किसी भी इदारे के, किसी भी सेंसिटिव इदारे की मैं कह दूंगा, किसी भी इदारे का हम नाम नहीं लेते, तो अगर एक सेंसिटिव इदारे की तमाम जितना स्टाफ है उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर दे कि यहाँ का डायरेक्टर ये है, इस सेक्शन का डायरेक्टर ये है, इसके नीचे ये लोग हैं, ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ तो हाईली ऑन रिस्क चली गई। क्या चीज आपसे गई? इंफॉर्मेशन। नंबर 2, डेटा लॉस। समवॉट लाइक इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा आपका लॉस हो गया है, लेकिन यहां पे थेफ्ट की बजाय लॉस का जब उसने लफ्ज इस्तेमाल किया तो मे बी सम ऑफ द फाइल हैव बीन डिलीटेड, सम ऑफ द फोल्डर्स, सम ऑफ द पार्टीशंस हैव बीन रिमूव्ड, दैट इज डेटा लॉस। इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि he can manipulations, he can change some, make some changes in the data. मिसाल के तौर पे अगेन आप किसी बैंक के अपने ही बैंक में एंटर हुए और अपने अकाउंट में आपने 0 एक बढ़ा दिया एट द राइट, जस्ट एक 0 ऐड किया, कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया, लेकिन उसी दिन आप मिलियनियर से बिलियनियर की तरफ रवाना हो गए। So what you did, you did the manipulations in the data. That is again very important attack. Then identity theft. कई चीजों की identity जो है, that can be theft. And the last one is the disruption. अभी मैंने बताया था, denial of service, disruption of services. कि आप कुछ सर्विसेज को डिनाई करवा दें। Where are you? Okay. Then comes the type of vulnerabilities. तो मैंने ये तो पहले क्लियर कर दिया कि vulnerability का मतलब है weaknesses. Vulnerability का मतलब है weaknesses. So the weaknesses which may I have called it the loophole. So vulnerability is a degree of weakness in the network और डिवाइस। किसी भी चीज, नेटवर्क में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में अगर कोई वीकनेस है, वी कॉल इट दी वल्नरेबिलिटी। कहता है सम डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी इज इनहेरेंट इन राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, वर्कस्टेशन एंड इवन इन दी सिक्योरिटी डिवाइसेस।
क्योंकि आप कहेंगे क्या मतलब इनहेरेंट का तो मतलब ये है कि जानबूझ के छोड़ दी गई है। नहीं, जानबूझ के नहीं छोड़ी गई। बाज वक्त किसी चीज को अच्छे पर्पज के लिए सोच के छोड़ा गया। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा कि अगर मुझे इस राउटर का या स्विच का या फायरवॉल का पासवर्ड भूल जाए, या मेरा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इदारे को छोड़ के चला गया है, तो लाजमी तौर पे अब हम ये तो नहीं कर सकते कि सारे डिवाइसेस को उठा के कबाड़ी को कहें आओ ले जाओ, हम नहीं लगाएंगे अब, नेवर पॉसिबल। तो लाजमी तौर पे कोई रास्ता छोड़ा गया कि आप ये तरीका अपना के उसको क्रैक कर लो, लेकिन अब उस तरीके को कोई और भी तो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे कि कुछ इनहेरेंट है, कुछ इनहेरेंट ना होने की वजह भी, मिसाल के तौर पे हमने लास्ट टाइम ही टीसीपी को और ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ा, हमने देखा कि इसमें फॉर एग्जांपल रीसेट का बटन है, रीसेट का फ्लैग है, बनाया तो अच्छे पर्पज के लिए गया है, लेकिन अगर मैन इन द मिडल ये इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो दैट इज डेंजरस। यही बात हम कर रहे हैं कि आपके हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में कुछ वीकनेसेस रह जाती हैं, बनाने वाले ने उसको सोचा भी नहीं होता कि शायद ये भी हो सकता है। लेकिन अगेन मैंने जब कहा है कि ये हाईली सैलरीड लोग हैं, दे हैव टू बी वेरी शार्प। अगेन मैं नॉर्मली स्टूडेंट को कहता हूं, बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि जी हम साइबर सिक्योरिटी में हम आगे आना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर आपका माइंड जो है वो पुलिस लाइक है, पुलिसिंग कर सकते हो, तो फिर आप साइबर एक्सपर्ट भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड उतना शार्प नहीं है तो फिर मुश्किल है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे टिपिकली द नेटवर्क डिवाइसेस अंडर अटैक। तो कौन कौन से डिवाइसेस आपके अंडर अटैक हो सकते हैं? आपके एंड पॉइंट्स मोस्टली, क्योंकि ज्यादातर आपकी एप्लीकेशंस एंड पॉइंट्स पे होती हैं। एंड पॉइंट क्या है? आपके सर्वर्स, आपके वर्क स्टेशंस, सारा डेटा। तो क्योंकि जितने हमने पिछले देखे, मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा लॉस, डेटा मॉडिफिकेशन, ये सारे कहां पे होंगे? किसी सर्वर पे पड़े हुए। मिसाल के तौर पे आपका सीएमएस का सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, लाजमी तौर पे उस सर्वर पे नजर रखने वाले की नजर होगी या हो सकती है। बात समझ आ रही है? ओके, तो कहता है कि जी देयर आर 3 प्राइमरी वल्नरेबिलिटीज, 3 किस्म की वल्नरेबिलिटीज की बात करता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटीज, एंड नंबर 3 सिक्योरिटी पॉलिसी वल्नरेबिलिटीज। तो कितनी किस्म की वल्नरेबिलिटीज हैं? 3 किस्म। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में वीकनेस रह गई है। जैसे मिसाल कभी मैंने की, अच्छे पर्पस के लिए ये फ्लैग बनाया गया, लेकिन गलत इस्तेमाल करने वाला कर सकता है। So that is something related to a weakness, maybe in the operating system, maybe in the equipment, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटीज। मिसाल के तौर पे आपने इन राउटर और स्विचेस पे काम किया है, आपने इन राउटर और स्विचेस पे फिजिकली भी और सॉफ्टवेयर में यानी कि सिमुलेशन में भी काम किया है, और दिल मेरा चाह रहा है देखेंगे, अगर इस कोर्स में नहीं तो अगले कोर्स में, जो कि होपफुली इंशाल्लाह जल्द हम स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल का कोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम along with this the tool which we are using, which is the packet tracer, we should also introduce the EVE-NG। लाजमी तौर पे आपका सवाल होगा कि भाई ये करवाने की आपको क्या जरूरत है? तो द आंसर इज, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी एक वजह, ये फायदा ये है कि ये मल्टी हार्डवेयर को, मल्टी टाइप ऑफ हार्डवेयर के लिए काम कर सकता है, और हमारे नेटवर्क्स डेफिनेटली मल्टी वेंडर है। एक ही इदारे के अंदर सिस्को के स्विचेस भी, राउटर्स भी लगे होंगे,
उसी इदारे के अंदर हवावे के भी लगे होंगे, उसी के अंदर जूनिपर के भी लगे होंगे, उसी के अंदर फोर्टिनेट के भी लगे होंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई भी प्रोवाइडर जो है या नेटवर्क वाले जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके पूरा का पूरा नेटवर्क एक ही कंपनी का, क्योंकि उस तरह उसकी मोनोपोली आ जाएगी। जैसे पीटीसीएल की एग्जांपल ले लें, अगर आप पीटीसीएल में देखें स्विचेस को इनके, तो इनके स्विचेस सीमेंस के भी हैं, हवावे के भी हैं, एनईसी के भी हैं, जेटी के भी हैं, एल्काटेल के भी हैं, एरिक्सन के भी हैं। तो एक कंपनी नहीं है। तो अगर आप इन सबको इकट्ठा चेक करना है तो ईवेनजी इज गुड। इसके मुकाबले पैकेट ट्रेसर आपने देखा सिर्फ हम सिस्को के स्विचेस को ही यूज करते थे, सिस्को के राउटर्स ही इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वहां पे सिस्को के तो हजारों किस्म के हैं राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, तो सारे के सारे तो पैकेट ट्रेसर में नहीं है। अगर मैं किसी मखसूस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर काम करना चाहता हूं, मैं किसी मखसूस iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाहता हूं, लेट के यहां पे जितने भी हैं मोस्टली दे आर iOS बेस्ड, आई वांट टू वर्क ऑन iOS XE, आई वांट टू वर्क ऑन थोड़ी सी वो होगा on iOS XR, definitely they are the different operating systems, they are probably not available in the packet tracer but they can be make available in the event। तो इसलिए स्पेशली आप में से जो लोग प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इस कोर्स को ले जाना चाहेंगे, देन दे विल लव टू लर्न दिस टू। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटी का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि ये जो आपने स्विच या राउटर पे काम किया, क्या इसके ऊपर पहले से यूजर के अकाउंट्स बने हुए थे? नहीं। क्या उनके पे पहले से पासवर्ड वगैरह लगे हुए थे? नहीं। क्या वहां पे पहले से ही वीलैन्स बने हुए थे? नहीं। यानी पहले से कुछ भी नहीं हुआ। आपने यही क्वेश्चन मुझसे कुछ टाइम पहले अब्दुल्ला ने भी पूछा था, तो जवाब मैंने उसको ये कहा था कि पहले से, क्योंकि उस जो आपको बेच रहा है उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, आप इसलिए तो आपको उन्होंने रखा है, आपको पे कर रहे हैं, पे करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू डू दी कॉन्फ़िगरेशंस देयर। लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस में कमजोरी छोड़ दी हुई है, वीकनेस छोड़ दी हुई है, मिसाल के तौर पे आपने उसके ऊपर पासवर्ड ही नहीं रखा हुआ, या आपने SSH को या टेलनेट को ओपन कर दिया हुआ है और बगैर किसी पासवर्ड के कोई भी शख्स रिमोटली टेलनेट को इस्तेमाल करके, जी जी क्या क्वेश्चन? मतलब डिवाइस को चेक करेंगे ना कि अगर ये काम कर रहे हैं तो उस क्रिएटिंग पे चेक करेंगे कि पासवर्ड लगते हैं डेटा स्टोर हो रहा है या पासवर्ड। अगर ये डिवाइस लेट करें कि किसी भी जगह लगा हुआ है, डेफिनेटली इस पर डेटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। वो डेटा तो मैं देख सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ कि कितना डेटा, इसकी कौन कौन सी इंटरफेस के ऊपर डेटा आ रहा है, जा रहा है। लेकिन अब उस डेटा में अगर कोई शख्स इस पे एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैंने उस पर कोई रुकावट नहीं रखी हुई तो कुछ भी नहीं पता चलेगा फिर। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जैसा बंदा को हायर किया जाए जो कि एक्सपर्ट हो, और वो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैं लगाए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी आपको ये बताया, चलें आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास 2 VPNs हैं। ये VPN यूरोप की एक यूनिवर्सिटी का है। अगर वो VPN बनाए के बगैर ही अगर मुझे कोई रास्ता दे देते तो फिर तो कोई भी शख्स उसके ऊपर जा सकता था। लेकिन उन्होंने VPN क्रिएट किया, नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन की।
कि अगर जिसके पास मखसूस यूजर नेम और पासवर्ड है सिर्फ वही बंदा अंदर आ सकेगा और बाकी नहीं आ सकेंगे। दैट इज द बेसिक द फंक्शनैलिटी ऑफ द वीपीएन। तो ये कौन बनाएगा? समवट लाइक यू। Make sense? Okay. Then is the security policy vulnerabilities. Ladies and gentlemen, हर एक इंडस्ट्री के लिए कुछ मखसूस किसी भी इंडस्ट्री के लिए, मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर एक के लिए कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज मौजूद हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसीज मौजूद हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी तो है। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों की डिग्री है, आपकी डिग्री के लिए एचईसी ने कोई पॉलिसी तो दी है, पीसी ने कोई पॉलिसी तो दी है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, या किसी भी दूसरे एजुकेशन सेक्टर के लिए, या किसी भी दूसरे सेक्टर के लिए कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज मौजूद होती है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन पॉलिसीज को अपने, अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, आप कुछ चीज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे थर्ड किस्म की जो वीकनेस है, अगर आप नई सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करते, तो चांसेस ये हैं कि इस मिसाल के तौर पे पॉलिसी ये है कि आप पासवर्ड जो है वो अपने यूजर को कहेंगे कि हर 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद चेंज करें। सिक्योरिटी पॉलिसी, मिसाल तो बैंक है, उन पे ये लाजम है कि अगर ये नहीं कि एक दफा आप कोई अपना अकाउंट बना ले और फिर सारी जिंदगी 10 साल के लिए वही अकाउंट इस्तेमाल करता रहे। नहीं, वो अपना अकाउंट बंद करेगा। मतलब बंद करने का मतलब ये है कि अपना यूजर और पासवर्ड हर, फॉर एग्जांपल महीने के बाद, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे। दैट इज द पॉलिसी। नहीं है तो उसको वार्न किया जाएगा कि जी आप पिछले 3 महीने से अपना पासवर्ड तब्दील नहीं कर रहे। इसी तरह पासवर्ड के लिए व्हाट शुड बी द लेंथ? क्या इट कैन बी 4 कैरेक्टर्स? नो, इट शुड बी 12 कैरेक्टर्स मिनिमम, फॉर एग्जांपल। लेट इट बी फर्दर, वेदर इट शुड इंक्लूड ओनली द सिंगल कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में? नहीं, आप कहते हैं जी स्मॉल भी होंगे, कैपिटल भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। यू आर गोइंग फॉर ए पॉलिसी ना, दैट इज सिक्योरिटी पॉलिसी। यू डोंट इम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि यू आर कीपिंग द लूप होल्स, यू आर क्रिएटिंग द लूप होल्स। तो हियर कम्स दी कि आप किस तरह इस चीजों को, डिजास्टर से बचने के लिए यू शुड इम्प्लीमेंट you should look at the technological vulnerabilities, configuration vulnerabilities and the security policy vulnerabilities. बात समझ आ गई? ओके, अब अगर हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, फिजिकल सिक्योरिटी की, तो जेंटलमैन, इट कैन बी दी हार्डवेयर थ्रेट्स, it can be the environmental threats, it can be the electrical threats, and it can be the maintenance threats. What mean by the hardware threats? मिसाल के तौर पे आपका केबलिंग हुई हुई है, लेकिन लूज केबलिंग है। तो लूज केबलिंग की वजह से चांसेस ये हैं कि स्पार्क या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और अगर शॉर्ट सर्किट होता है या स्पार्क होता है तो इट कैन डैमेज योर डिवाइसेस। बाद वक्त आपने देखा होगा कि जब आप पावर प्लग लगाते हैं, क्वाइट वो लूज होते हैं, स्पार्किंग हो रही होती है, लेकिन आप देख के कहते हैं गुजारा कीजिए लग गया थी। नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट कि जी वो दैट स्पार्क कैन डैमेज योर सर्वर, योर राउटर, योर स्विचेस, योर वर्कस्टेशन। So that is a hardware things.
इन्वायरमेंटल थ्रेट का मतलब ये है कि स्पेशली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनको रन करने के लिए you keep the temperature in a certain range, a low temperature and a high frame. You keep the humidity in a certain range. You keep the amount of dust in the environment under control. अगर आप नहीं हो रहा तो इट इज एन एनवायरमेंटल थ्रेट. मिसाल के तौर पे अगर आप में से किसी ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली टेलीकॉम के इदारों में अगर कहीं इंटर्नशिप की है, तो उनको पता होगा कि आप अगर वहां के स्विच रूम के अंदर इंटर हो तो सबसे पहले तो जो ही गेट पे जाते हैं, पहले तो आप अलाउड ही नहीं है अंदर जाने के लिए. इवन अगर आप अलाउड हैं तो आप अपने शूज यहाँ पे उतार देंगे और उनके शूज पहन के अंदर जाएंगे, और ये सारा जगह कोई विंडो कुछ भी नहीं है. इसका मतलब है कि डस्ट वगैरह नहीं पॉसिबल. वी हैव टू कीप इट क्लीन. नंबर 2, 12 महीने यहां पे एयर कंडीशनर चल रहा होगा. ये नहीं कि जी जून जुलाई है तो एसी लग गया, दिसंबर है तो बंद कर दें. नो, टू कीप द टेम्परेचर इन ए सर्टन रेंज. 1 घंटा भी अगर वहां पे बिजली किसी वजह से एसी फेल हो जाए, दिस होल इक्विपमेंट माइट गो ऑफ. तो दिस इज दी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स. इसी तरह वहां पे ह्यूमिडिटी का एक खास का लेवल होना चाहिए. आपने देखा होगा कि जो घर ऐसी जगहों पे हैं, स्पेशली जहां पे पानी का साथ कोई पानी की चाहे नहर है चाहे कोई और ऐसा वो है, वहां पे एसीज वगैरह बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं. वहां पे आपके जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप वगैरह या ये हैं, उनकी रैम वगैरह बड़ी जल्दी खराब हो जाती है. वजह क्या होती है? जब आप खोल के देखें तो उसमें रस्ट हुआ होता है. आपके एसी का या एयर कंडीशनर, आपके रेफ्रिजरेटर्स हर साल वहां पे उन घरों में खराब हुए होते हैं. वजह क्या होती है कि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एंड दैट क्रिएट रस्ट, and rusting creates and then next one is in the electrical threats. आपको पता है कि आपके डिवाइस इन पाकिस्तान दे आर डिजाइन फॉर 220 वोल्ट, लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक 150 वोल्ट आ रहा है कंसिस्टेंटली या 300 प्लस में आ रहा है, तो दिस इज insufficient. This is something wrong. So this is a threat in the आपकी पावर जो है एकदम फ्लक्चुएट कर रही है. एकदम 150 होती है, 300, फिर 150 हो रही होती है, टक कर रही होती है. This is a electrical threat. And the final one is the physical security में, this is the maintenance threat. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई रनिंग खर्चे होते हैं, और वो रनिंग खर्चे इसलिए होते हैं, इसलिए आपको दिए जाते हैं कि आप अपने इक्विपमेंट के ऊपर उसको खर्च करें, इक्विपमेंट पे उसको खर्च करें. अगर जैसे अभी हमने कहा, मिसाल के तौर पे कुछ चीज लूज हो गई है, तो ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, खैर है होता रहे, मेंटेन करो उसको ठीक करो. क्लियर एवरीवन? तो कहता है कि a good plan of physical security must be created and implemented to address these issues. A plan, a policy must be there which should handle all of these physical security threats. Clear everyone? Okay, if it is clear, then the next topic is about the network attacks. लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क अटैक्स में हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मालवेयर. सबसे पहले ये बताता चलूं कि मालवेयर क्या है. मालवेयर स्टैंड फॉर मिलिशियस सॉफ्टवेयर.
यानी सॉफ्टवेयर तो मोस्टली गुड रीजंस के लिए लिखा जाता है, गुड रीजन के लिए लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सेल इंस्टॉल किया है, पावर पॉइंट इंस्टॉल किया है, मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है, सो डेफिनेटली दे आर फॉर गुड रीजन। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गुड रीजन के लिए नहीं लिखते, बैड रीजन के लिए लिखते हैं, ठीक है, बैड रीजन के लिए लिखते हैं। नाउ इफ दे राइट फॉर द बैड रीजन, if they write it for the bad reason, this is called the malware। आप कहेंगे ये कौन सी चीजें हैं जी? तो कौन सी चीजें हैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीजें हैं जी। ये चीजों में सबसे पहले में आपको आवाज आ रही है? Which one? This one? इसमें कोई आवाज नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये किस किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। नंबर वन, वी विल टॉक अबाउट देम वायरसेस, वी विल टॉक अबाउट द वॉर्म, वी विल टॉक अबाउट द ट्रोजन हॉर्स, we will talk about the number 4, we will talk about the adwares, we will talk about the spywares, we will talk about the ransomware. So all of them are malicious malwares. All of them are the malwares. Viruses, worms, trojan horse, adwares, spywares, ransomware है। तो जब आप कहते हैं कि सभी malicious हैं तो फर्क क्या है? डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस कि फॉर एग्जांपल ransomware में और ट्रोजन में क्या फर्क है। हम तो दोनों बुरा करेंगे, लेकिन वी विल लुक एट देम इंशाल्लाह टुमारो कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम, किस तरह बुरा काम करता है। क्लियर एवरीवन? Is there any question? Maros, is there any question? Anyone from the online? Although bad point ये है कि online में student आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, तो that is bad. Alisha, Anam, Rija, No, is there any question? No, sir. No sir. क्या कल आना है या कल भी छुट्टी है? सर आना कल। कल आना है, चल इंशाल्लाह फिर कल फिजिक्स क्लास में फर्दर इस पे बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह।